Good morning class. So today we are going to start off with the new topic, that is adverbs. And I think you have studied this topic before also in your previous classes. So today I am just going to give a thorough of this. Okay. So firstly, what is an adverb? An adverb in a sentence basically adds more information about a verb, an adjective and another adverb. I know that this definition is a bit tricky, so I will explain this definition to you with the help of an example. So इसमें हमने ये पढ़ा कि जो adverb होता है that adds more information about a verb, it adds more information about an adjective and it adds more information about another adverb. ठीक है? तो let's see. Suppose if I say he talks loudly. ठीक है? तो in this sentence, what is our verb? Our verb is talks. And what is an adverb? It is loudly. ठीक है? तो he talks, how he is talking? He is talking loudly. ठीक है? तो यहाँ पे हमारे adverb ने क्या किया? That it gave more information about the verb. ठीक है? कि how he is talking? He is talking loudly. Suppose if I say she sang sweetly. ठीक है? Verb क्या है हमारा? Sang, because this is a doing action. And what is adverb? It is sweetly. So how he sang, अगर मुझे और verb के बारे में information चाहिए कि अगर मैं बोलूँ she sang, तो अब ये तो एक normal sentence है, हमें तो नहीं पता how she sang like sweetly, she sang loudly, she sang quietly, मतलब how she sang, we do not know. But जब हमने बोला she sang sweetly, तो how she sang sweetly, तो sweetly हमारा adverb हो गया because it is giving more information about the verb. That how she sang sweetly. How he talks loudly. So an adverb generally adds to the verb, means it gives more information about the verb. And suppose if I say, ठीक है, verb के बारे में तो हमें पता चल गया. Suppose if I say he is very tall boy, he is a very tall boy. तो यहाँ पे हमारा adjective क्या है? Tall. और हमारा adverb क्या है? Very. ठीक है? तो अब हमने ये देखा how much tall he is. How much tall the boy is? He is very tall, right? तो यहाँ पर भी जो हमारा adverb था उसने हमें और information दी about the adjective. Suppose if I say she is an extremely beautiful girl. She is an extremely beautiful girl. इसमें adjective क्या है? Beautiful, because it is telling the quality of the girl and how much beautiful she is. She is extremely beautiful. So यहाँ पे adjective ये है और adverb ये है because adverb is giving more information about the adjective, like how much beautiful she is. She is extremely beautiful. How much tall the boy is? He is very tall. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि जो हमारा adverb होता है, it gives more information about the verb in a sentence and it gives more information about the adjective in a sentence. But how it और ये जो adverb होता है, it also modifies the another adverb. How? Let's see. Suppose if I say he ran too quickly. अब यहाँ पर हमारे इस sentence में दो adverbs हैं. Quickly हमारा adverb of manner है, ठीक है? How he ran quickly. And how means how quickly he ran? He ran too quickly. तो ये भी हमारा adverb है. So sometimes an adverb also modifies the another adverb. ठीक है? तो I think आपको adverb clear हो गया होगा अभी तक कि an adverb gives more information about a verb, an adjective and another adverb. ठीक है? Now we will see the types of adverbs, which is a very important thing in this whole lesson. The most important thing is about the types of adverb. If you understand the types of adverb, then you will understand the whole adverbs. First is your adverb of manner. ठीक है? तो adverb of manner हमें क्या बताता है? Adverb of manner tells us that how the action is happening. It answers the question that how the action is taking place. Suppose if I say she ran fastly.
अब मैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन करूँगी, हाउ शी रैन, यही तो क्वेश्चन करूँगी, तो फास्टली हमें आंसर मिलेगा। तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, बिकॉज एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर्स द क्वेश्चन हाउ। ठीक है, सपोज इफ आई से ही राइट्स वेल, हाउ ही राइट्स, ही राइट्स वेल, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमारा ये क्वेश्चन आंसर करता है हाउ द थिंग इज हैपनिंग। ठीक है, इफ आई से शी इज बैडली हर्ट, तो हाउ मच शी इज हर्ट, लाइक हाउ शी इज हर्ट बैडली। सो दिस इज अवर एडवर्ब ऑफ मैनर। देखो जनरली जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है इट एंड्स विथ ly, इट एंड्स विथ ly, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, कभी कभी जैसे लाउडली, सॉफ्टली, स्वीटली, फास्टली, लविंगली, हैप्पीली, चीयरफुली, है ना, इस टाइप जो ly जिनमें आता है तो हमको लगता है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। बट कभी कभी एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे सपोज ही राइट्स वेल, तो इसमें तो ly नहीं है, बट स्टिल दिस इज योर एडवर्ब ऑफ मैनर। तो अब इसको पहचानने का तरीका यही है कि जब ऐसा कुछ आप देख लो तो आप अपने आप से क्वेश्चन पुट अप करो दैट हाउ द थिंग इज हैपनिंग, तो इट इज हैपनिंग इन दिस वे। ऐसे ही रैन फास्टली, हाउ ही रैन्स फास्टली, ही राइट्स वेल, हाउ ही राइट्स वेल, शी इज बैडली हर्ट, हाउ शी इज हर्ट बैडली। So this is your adverb of manner. It tells us that how the action is happening. Now, the second is your adverb of time. Adverb of time tells us that when the action has happened, okay? When the action has happened. Suppose if I say, he met me a year ago. ठीक है, so when did he meet me? Year ago. तो यहां पर ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, सपोज इफ आई से कम सून, तो when you have to come, you have to come soon. This is your adverb of time. Suppose if I say wake up, sorry, he woke up early. When did he wake up? He woke up early. ठीक है, she is late. जैसे early है, late है, ठीक है, soon है, ago है, तो ये सब हमारे adverb of time है, बिकॉज ये हमें ये बताते हैं कि when the action is happened. जैसे if I say she is late नहीं, suppose if I say she got up late, तो when did she get up? She get up late. Is it clear? तो adverb of time बताता है कि when the action is taking place. फिर आता है हमारा adverb of place. Adverb of place बताता है हमको adverb of place. तो adverb of place tells us that where the action is taking place. Action कहाँ पर हो रहा है. Suppose if I say suppose if I say come here, or if I say go there, ठीक है, come where? Here. Go where? There. So ये हमारा हमेशा ये क्वेश्चन आंसर करता है, that is where the action is taking place. Is it taking place inside, outside, everywhere, nowhere? तो ये सब जब सेंटेंसेस में आ जाए तो वो हमारे होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस. सपोज इफ आई से कम अपस्टेयर्स, तो अब इसमें क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस इज upstairs, because where you have to come upstairs. Suppose if I say go downstairs and bring me the books, so where you have to go downstairs. तो जब आप कभी क्वेश्चन करोगे ना अपने आप से in adverb of place, तो आपको ये मिलेगा where you have to do this, there, here and there. Okay, तो ऐसे होता है adverb of place. अब हमारे सबसे दो important adverbs हमें देखने हैं. First is our adverb of frequency.
अच्छा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ ही साथ एक होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको देखो समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, इट आंसर्स द क्वेश्चन दैट हाउ ऑफन द एक्शन इज टेकिंग प्लेस। अब इसका मतलब क्या है, अगर इसको मैं हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्शन है वो कितनी बार हो रहा है, मतलब हाउ मेनी टाइम्स इज इट गेटिंग रिपीटेड। सपोज इफ आई से ही नेवर कम्स लेट, तो इसमें कितनी बार एक्शन रिपीट हो रहा है, नेवर, ही नेवर कम्स लेट। सपोज इफ आई से शी ऑलवेज gets up, she always gets up early, एक्शन कितनी बार रिपीट हो रहा है, ऑलवेज, ठीक है। इफ आई से शी फ्रीक्वेंटली गो देयर, शी फ्रीक्वेंटली गो देयर, तो हाउ मेनी टाइम्स शी गोज देयर, मतलब व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द एक्शन इज गेटिंग रिपीटेड। फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर कर, वो अक्सर कर वहां जाती है, कब कब जाती है, अक्सर कर। सो इसमें हम ये देखते हैं एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में कि हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन इज गेटिंग रिपीटेड, मतलब एक्शन कितनी कितनी बार हो रहा है। नेवर कभी नहीं हो रहा है, हमेशा हो रहा है मतलब ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली अक्सर कर, ऑफन कभी कभी, ठीक है। तो किस तरीके से, किस हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन इज गेटिंग रिपीटेड। जैसे आप देख लो, ऑफन है किसी में, फ्रीक्वेंटली है, सेल्डम है, नेवर है, ऑलवेज है। या सपोज इफ आई से शी रेयरली कम्स हियर, वो रेयरली आती है, मतलब कभी कभार ही आती है, रेयरली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो आती ही नहीं है, रेयरली। तो शी रेयरली कम्स हियर, तो कितनी बार एक्शन रिपीट हो रहा है, रेयरली, ठीक है। तो इसमें रेयरली आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस तरीके से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, इट टेल्स अस दैट हाउ ऑफन द एक्शन इज हैपनिंग, कितनी बार एक्शन हो रहा है, ठीक है। इसको आप हिंदी में अगर याद रखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को, तो इसका मतलब होता है कि हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन इज गेटिंग रिपीटेड, कितनी बार एक्शन हो रहा है, ऑफन हो रहा है, सेल्डम हो रहा है, रेयरली हो रहा है, ठीक है। ऐसे याद करते हैं। और अब आता है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री में, एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स अस that with what intensity the action is taking place, with what intensity the action is taking place। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी तो हमें ये बताता है कि एक्शन कितनी बार हो रहा है, ठीक है। ये हमें ये बताता है कि कितना ज़्यादा स्पीड से एक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे सपोज इफ आई से ही इज वेरी टॉल, ठीक है। अब हम इसमें क्या, एंड इट ऑलवेज, हाँ रिमेंबर वन थिंग कि एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होता है, इट ऑलवेज आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, कितना ज़्यादा, ठीक है, ठीक है। ही इज वेरी टॉल, अब इसमें हाउ मच टॉल ही इज, वेरी टॉल, ठीक है। ही इज टू बिजी, हाउ मच बिजी ही इज, टू बिजी, ठीक है। सपोज अगेन आई टेक एन एग्जाम्पल, सपोज इफ आई से ही इज क्वाइट नॉटी, हाउ मच नॉटी ही इज, क्वाइट नॉटी, काफी नॉटी है, ठीक है। सपोज इफ आई से he is almost there, बस वो पहुंचने ही वाला, he is almost there, so how much he is there, almost there, ठीक है। तो ये हमेशा आंसर करता है how much, कितना ज्यादा, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर करता है how often, कितनी बार, अगर हिंदी में ये चीज़ हमको समझानी हो। तो आई होप एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब फ्रीक्वेंसी इज क्लियर टू यू, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। एक होता है हमारा ठीक है,
अब दिस इज नॉट फॉर क्लास 6th and 7th बट दिस इज फॉर क्लास 8th कि देर इज एडवर्ब ऑफ रीजन. एडवर्ब ऑफ रीजन मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ कि एडवर्ब ऑफ रीजन में जनरली हम रीजन देते हैं एंड इट इज ऑलवेज जॉइंड बाय सम सॉर्ट ऑफ कंजंक्शन. जैसे एडवर्ब ऑफ रीजन में क्या होता है कि इट इज ऑलवेज जॉइंड बाय सम कंजंक्शन. रीजन, जैसे रीजन देते हैं, जैसे कि सपोज मैं यही तो बोलूंगी आई वॉज लेट बिकॉज आई डिड नॉट गॉट अप ऑन टाइम. ये रीजन मैंने दिया ना. जैसे टीचर पूछती है व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, तो आप ये तो बोलते हो मैम आई वॉज एब्सेंट बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर. तो ये होता है एडवर्ब ऑफ रीजन. ठीक है, जैसे आपकी मम्मी ने पूछा व्हाई यू गॉट अप अर्ली टुडे, आई गॉट अप अर्ली सो दैट आई कैन कंप्लीट माई वर्क. ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ रीजन जनरली किसी ना किसी कंजंक्शन से जॉइंट होता है एंड इट ऑलवेज बेसिकली गिव्स रीजन अबाउट समथिंग. ठीक है, एक होता है हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन. ठीक है, क्लास 8th में है ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन. ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन क्या होता है? इट टेल्स अस समथिंग दैट इज ट्रू. या हमें ये बताता है इट टेल्स अस समथिंग दैट इज ट्रू. मतलब ये हमें कोई ऐसी चीज बताता है जो सच है. ठीक है, जैसे कि सपोज इफ आई से he is certainly telling the truth. मतलब वो सच में सच ही बोल रहा है. ठीक है, तो यहां पर ये हमें ये बताता है समथिंग दैट इज ट्रू. ठीक है, या जैसे सपोज इफ आई से yes they are coming tonight, he is certainly telling the truth. ठीक है, तो ये सेंटेंसेस हमारे एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन होते हैं. टेल्स अस समथिंग दैट इज ट्रू, दैट्स गोइंग टू हैपन. एंड एडवर्ब ऑफ एक होता है हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन. तो एडवर्ब ऑफ नेगेशन टेल्स अस समथिंग दैट इज नॉट ट्रू. जैसे ही इज नॉट कमिंग टुनाइट, ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन स्टडीज. तो जिसमें नॉट आ जाए या मतलब कुछ इस टाइप से आ जाए, नेगेटिव कुछ बात हो जाए, तो दैट इज योर एडवर्ब ऑफ नेगेशन. एंड एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन टेल्स अस समथिंग दैट इज ट्रू. ठीक है, एंड लास्ट होता है हमारा our last thing is adverb of लास्ट है हमारा रिलेटिव एडवर्ब. रिलेटिव एडवर्ब क्या करता है? इट जॉइंस टू क्लॉजेस. क्लॉज क्या होती है? क्लॉज हमारी वो होती है अ सेंटेंस दैट इज कंप्लीट एंड दैट मेक्स सेंस. क्लॉज में क्या होता है? उसमें आपका सब्जेक्ट भी होता है एंड इट इज ऑल्सो हैविंग अ वर्ब. मतलब क्लॉज इज अ कंप्लीट सेंटेंस. तो जब दो क्लॉजेज होती हैं विच आर लाइक कंप्लीट और उसको हम बीच में कोई रिलेशन दे देते हैं, तो दैट इज योर रिलेटिव एडवर्ब. सपोज इफ आई से शी इज द गर्ल हु स्टोल माई पेंसिल. ठीक है, शी इज द गर्ल हु स्टोल माई पेंसिल. तो अब इसमें जैसे पहला क्लॉज तो ये है शी इज द गर्ल. ठीक है, एंड इसमें सेकंड क्लॉज है हमारा स्टोल माई पेंसिल. तो मतलब ये जो सेंटेंसेस हैं दोनों आपस में कंप्लीट हैं और इसको हमने किससे ज्वाइन किया है? वी हैव जॉइंड इट बाय हु. सो इन दोनों सेंटेंसेस का रिलेशन बता रहा है ये हु. तो रिलेटिव एडवर्ब जनरली आपके जैसे हु, व्हेन, ठीक है, वेयर, वाई. ठीक है, ये सब जब सेंटेंसेस में कहीं पर भी आपको मिडिल में दिख जाएं तो ये आपके होते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स. ठीक है, जैसे गोल्डीलॉक्स इज द बुक विच आई लाइक द मोस्ट. विच भी होता है. ही लेफ्ट द पार्टी व्हेन आई अराइव्ड. तो अब दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस आपस में जुड़ गए विद द रिलेशन हु, व्हेन, वेयर, वाई, विच. तो ये आपके रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स?